Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also. That will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 20 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आईएमडी। आईएमडी क्या होता है? इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आईएमडी का अभी 150th फाउंडेशन डे हमने ऑब्जर्व किया। कब ऑब्जर्व किया? 15 जनवरी 2024 को हमने 150वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ यहाँ के चीफ गेस्ट की तौर पर इस इवेंट पर यहाँ पर आए थे। ठीक है, 1200 से भी ज़्यादा लोगों ने इस इवेंट को ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट किया। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यहाँ पर एक सॉन्ग भी लॉन्च किया गया, राइट, थीम सॉन्ग ऑफ आईएमडी। एंड अगर आईएमडी की बात कर रहे हैं हम, तो आईएमडी के डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में रहेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं, जरा बताओ, अभी रिसेंटली गंगा सागर मेला ये कहां पर हो रहा है? गंगा सागर मेला ये वेस्ट बंगाल में होगा, गंगा सागर मेला। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ कितने राज्यसभा के मेंबर रिटायर हो जाएंगे 2024 में? तो 68 मेंबर्स रिटायर होंगे। करेक्ट। फिर अभी रिसेंटली इंडिया ने मॉरिशियस के साथ मिलके एक डील साइन करी फॉर स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट, और वो 20 करोड़ रुपए की स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट की ये डील रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन 2022-23 इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच परसेंट हायर। तो अभी एक डाटा निकल के आया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है ना इंडिया में, उसमें 2.32% का राइज देखने को मिला एज कम्पेयर इन 2022-23 एज कम्पेयर टू 21-22 में। और ये जो 2.32% का इंक्रीज है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 8.07 मिलियन टन। तो टोटल जो 2022-23 में हमारा प्रोडक्शन देखने को मिला वो कितना था? 355.25 मिलियन टन का। ठीक है। ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ये थी थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर 2022-23। ठीक। चलिए, इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जरा बताओ, अभी रिसेंटली काला उत्सव ये इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, राइट। फिर योग्याश्री ये SC एंड ST स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया। किसके द्वारा योग्याश्री? तो वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया योग्याश्री, राइट। देन इंडिया का पहला हाइजीनिक स्ट्रीट या फिर फूड स्ट्रीट
इंडिया की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम, ये कहाँ पे लॉन्च की गई? उज्जैन में। ठीक, नेक्स्ट, फिर MEITY सेक्रेटरी इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर कहाँ पर? तो इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ग्राफीन सेंटर के साथ साथ याद रखेंगे इंटेलिजेंट IoT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी लॉन्च किया गया। दोनों सेम जगह पर है, कोची, केरला में। फिर याद रखेंगे जो ये ग्राफीन है ना, ये ग्राफीन एक तरीके का मटेरियल होता है, ठीक है। इससे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। वहीं पे ये ग्राफीन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया। और दूसरा याद रखेंगे इंटेलिजेंट IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आपकी रिमोट कंट्रोल कार हो गई, आपके सेंसर्स हो गए, आपके कैमराज हो गए, ड्रोन को कंट्रोल किया जाता है, रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा, तो उसमें भी IoT का यूज़ किया जाता है। तो वो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट IoT थिंग्स ये खोला गया। तो ये दो चीज़ याद रखेंगे, ग्राफीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और दूसरा इंटेलिजेंट IoT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया। दोनों कहाँ पर? कोची, केरला में। राइट, मार्क करेंगे। चलिए, फिर एक हार्ट टेक याद रखेंगे, हार्ट टेक 24। ये क्या है? बेसिकली ये मेकर विलेज का एनुअल फ्लैगशिप प्रोग्राम रहेगा। राइट, और ये मेकर विलेज कहाँ पर है? केरला में। तो हम कह सकते हैं केरला का हार्ट टेक है बेसिकली कि आपका एक एनुअल फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसके अंदर हम देखेंगे स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर साथ आती हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हम देख सकते हैं MEITY सेक्रेटरी इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर और इंटेलिजेंट IoT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोची, केरला में। नेक्स्ट आ जाते हैं AFMS एंड एम्स। AFMS क्या है? आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, एंड एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन हुआ टू एड्रेस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। राइट, नई नई टेक्नोलॉजी में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, राइट, उसको सॉल्व करने के लिए ये MOU साइन किया गया। Moving on, next, according to Brand Finance Global 500 2024 report, which is the strongest brand globally। तो अभी एक ब्रांड फाइनेंस के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई अबाउट ग्लोबल 500 2024 ब्रांड। ये 18th एडिशन था इस रिपोर्ट का जो ग्लोबल जो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा रिलीज की गई। और इसमें बताया गया कि जो वीचैट है ना, ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड निकल के सामने आया फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है यूट्यूब और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है फिर गूगल। राइट, फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया का रिलायंस जियो ये 17th पोजीशन पे है और इंडिया में ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ग्लोबली 17th पोजीशन पे आ जाता है रिलायंस जियो, करेक्ट, ओन्ड बाय इंडियन बिलियनियर मुकेश अंबानी। और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है वर्ल्ड में वीचैट। ब्रांड फाइनेंस की बात करें तो ब्रांड फाइनेंस के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? डेविड हैग। हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा इसका? लंदन, यूके में। एंड इसको 1996 में स्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट अगर आपसे इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को जुलाई 2024 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो हमारी इंडिया होस्ट करेगी 2024 के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को। राइट, फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, अभी रिसेंटली इंडस फूड 2024 ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया और कहां पर इनॉग्रेट किया गया? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा इंडस फूड 2024 को इनॉग्रेट किया गया। और कहां पर? ग्रेनो में। ग्रेनो क्या है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक, इवन याद रखेंगे, चलो वो मैं फिर आपको आगे बताता हूं। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर 2024 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? अगर ग्लोबली मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की बात करें कि कौन सी कंट्री की जो फायर पावर है वो टॉप पर आती है, सबसे स्ट्रांग है, उस हिसाब से देखें तो इंडिया की रैंक आ जाती है 4th पोजीशन पे। टॉप पर आ जाता है USA, फिर रशिया, चाइना, इंडिया 4th पे एंड 5th पे साउथ कोरिया। यहीं पर अगर हम देखें तो USA सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है, ऑलमोस्ट $831 बिलियन की स्पेंडिंग करता है हर साल USA मिलिट्री बजट्स पर। फिर वहीं पर अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना सेकंड की जो स्पेंडिंग रहती है वो ऑलमोस्ट रहती है $227 बिलियन की। रशिया $107 बिलियन की स्पेंडिंग करता है बस। ठीक है, चलिए इंडिया की भी देख लेते हैं। $74 बिलियन की हम स्पेंडिंग करते हैं एनुअली ऑन आवर डिफेंस बजट।
नेक्स्ट है IREDA एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। तो IREDA एंड इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच में भी एक MOU साइन हुआ, और ये MOU किस लिए था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है ना उसको ग्रो करने के लिए हम चाहते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया में वो ग्रो करे। ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स फंड करना चाहते हैं। इवन आप देखेंगे आजकल बॉन्ड्स भी इशू किए जा रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग NBFCs बैंक्स के द्वारा, ताकि नॉट NBFCs बैंक्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ताकि ये जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा इस बॉन्ड से इनको हम ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लगा सकें। इवन इंडिया का भी एक टारगेट याद रखेंगे, इंडिया 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना चाहता है। इस टारगेट को अचीव करना चाहता है बाय 2030। ठीक, नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। इन्होंने लॉन्च किया बॉब 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम विद हाई इंटरेस्ट रेट। तो ये बॉब के नाम से समझ जाएंगे आप, बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है। यहाँ पे ये 7.6% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रहे हैं टू सीनियर सिटीजन्स, एंड नॉर्मल सिटीजन्स के 7.1% रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेट है ना 2 करोड़ के बिलों के लिए एप्लीकेबल है विद इफेक्टिव फ्रॉम 15 जनवरी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लेस देन 1 ईयर 1,000 से लेके 2 करोड़ रुपए तक की यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू रहेगी। मतलब मिनिमम 1,000 रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक यहाँ पे आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड 360 डेज का ये ऑफर रहेगा। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? देबादत्त चांद, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात, एंड इसको 1908 में फाउंड किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है DBS बैंक। DBS बैंक इंडिया, इन्होंने कोलैबोरेट किया स्टार्टअप तमिलनाडु के साथ ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके इन तमिलनाडु। जैसे अगर आपको याद हो कुसुम क्या है? केरला स्टार्टअप मिशन। तो हम केरला में स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए, MSMEs को ग्रो करने के लिए ये कुसुम हेल्प करता है। सिमिलरली तमिलनाडु में स्टार्टअप TN, ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करने का काम करता है इन तमिलनाडु। तो यहीं पे याद रखेंगे DBS बैंक इंडिया, इन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेट किया स्टार्टअप TN के साथ, जो कि नोडल एजेंसी है तमिलनाडु गवर्नमेंट की टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप इन तमिलनाडु। यहाँ पर ये ओवर 1000 अर्ली एज स्टार्टअप्स को हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। ठीक है, फिर DBS बैंक इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सुरजीत सोम, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 1994 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। तो अभी रिसेंटली MHI मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक 11 मेंबर का पैनल फॉर्म किया है। ये 11 मेंबर का पैनल बेसिकली काम क्या करेगा कि जो PLI स्कीम है ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसको ग्रो करने का काम करेगा, कि कैसे हम उसको और ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है, उसकी बात की गई। इस स्कीम को PLI स्कीम को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, एंड इस PLI स्कीम के अंडर जो भी इंसेंटिव प्रोवाइड कराए जाते हैं वो आपका ध्यान रखेंगे 5 साल का जो कम्युमुलेटिव सेल होगा, जो आपका सामान बिका होगा, उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो 5 साल की बात की गई ना आपका इंसेंटिव देने की, वो 2023-24 से लेके 27-28 तक का ध्यान रखा जाएगा। एंड इसी के अंडर याद रखेंगे जो 11 मेंबर का पैनल सेटअप किया गया ना, इसको चेयर कौन करेंगे? हानिफ कुरैशी यहाँ पे इस 11 मेंबर के पैनल को चेयर करेंगे, जो कि इस PLI ऑटो स्कीम को ग्रो करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है वीरा राणा, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनको अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश, एंड ये सेकंड वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश बनी है। इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी बनी थी निर्मला बुच थी, वो पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी थी मध्य प्रदेश की 1991 से लेकर 1993 के बीच में। और अभी वीरा राणा 1988 बैच IAS ऑफिसर है, इनको चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया ऑफ मध्य प्रदेश। ये किनको सक्सीड करेंगी? ये सक्सीड करेंगे इकबाल सिंह बेंस को, जो रिटायर हो गए नवंबर 2023 में। राइट, चलिए फिर इसी के अलावा याद रखेंगे संजय बंदोपाध्याय, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। राइट, ये भी 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं ऑफ मध्य प्रदेश कैडर, एंड इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया ऑफ MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। नेक्स्ट आ जाता है सीजर बर्नाडो, इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला। ये एंटी करप्शन लीडर हैं बेसिकली एक।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइंस एंड टेक के ऊपर। इसरो ने भी रिसेंटली सेकंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डेवलप किया फिशरमैन के लिए, ताकि इमरजेंसी मैसेजेस को भेजा जा सके फ्रॉम फिशिंग बोट ड्यूरिंग देयर फिशिंग का जो वो मिशन पे होते हैं, राइट। तो उस केस में इमरजेंसी मैसेजेस को भेजने के लिए अभी इसरो के द्वारा इन फिशरमैन्स के लिए एक सेकंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डेवलप किया गया, DAT-SG, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकंड जनरेशन। ठीक है, काफी हेल्पफुल रहेगा इन फिशरमैन्स के लिए ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पे आ जाते हैं, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये है अजीत सिंह गिल, ये सिंगापुर की फॉर्मर हॉकी प्लेयर है एंड ओलंपियन, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 95 इन सिंगापुर। कुआलालंपुर मलेशिया में ही इनका जन्म हुआ था, राइट। ही वॉज बॉर्न इन 1928 इन कुआलालंपुर मलेशिया एंड मूव टू सिंगापुर इन 1953। नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज। तो अभी रिसेंटली 19 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे, NDRF का रेजिंग डे। कब ऑब्जर्व किया गया? ये 19 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया एंड 19 से याद रखेंगे इस बार 2023 में हमने इसका 19th एडिशन ऑब्जर्व किया NDRF डे का, राइट। NDRF डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो भी हम इस्टेब्लिशमेंट, जो भी डिजास्टर के टाइम पे जो भी फोर्स मिलके काम करती हैं, ठीक सारी चीज़ों को ठीक करने में, लोगों को बचाने में, लोगों की हेल्प करने में, उसको ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। NDRF की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? अतुल करवाल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो गोवा वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिन्होंने रीजनरेटिव टूरिज्म को लॉन्च किया, ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो सके, इन्वायरमेंट को रिस्टोर किया जा सके, कल्चरल प्रिजर्वेशन हो सके, कम्युनिटी एम्पावरमेंट देखा जा सके एंड राइट। इसीलिए गोवा का वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने ये रीजनरेटिव टूरिज्म लॉन्च किया। ये जो मॉडल है इनका 11 स्पिरिचुअल साइट्स पे रहेगा, एक दशा तीर्था कैंपेन रहेगा ये, राइट, टू प्रमोट दीज 11 स्पिरिचुअल साइट्स अंडर दिस एक दशा तीर्था कैंपेन। इसमें हम देखेंगे काफ़ी सारे कुजीन्स, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट रहना सहना, डिफरेंट कल्चर हमें यहाँ पे लोगों का देखने को मिलेगा। एंड ये जो मॉडल था रीजनरेटिव टूरिज्म, ये लॉन्च किया गया था ऑन 62nd एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑफ गोवा, जो कि 19 नवंबर 2023 को देखी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। IMD का 150th फाउंडेशन डे 15 जनवरी को। देन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 2022-23 में ग्रोथ देखने को मिलती है ऑफ 2.32% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। देन MEITY सेक्रेटरी इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर एंड इंटेलिजेंट IoT सेंटर ऑफ केरला इन सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कोची केरला। ये दोनों चीज़ कोची केरला में लॉन्च की गई। देन AFMS एंड एम्स इन्होंने एक MOU साइन किया टू एड्रेस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इशूज़। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2024 रिपोर्ट रिलीज की गई एंड रिलायंस जियो वो वर्ल्ड का 17 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन गया है। इंडिया का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है। टॉप पे रहेगा वीचैट। वीचैट कहाँ का आ जाता है? बेसिकली चाइना का ये ब्रांड है। देन ग्लोबल फायर पावर 2024 की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया की रैंक रहती है 4th, USA ने टॉप किया, रशिया सेकंड पे आ जाता है, चाइना थर्ड पे आ जाता है। देन IREDA एंड इंडियन ओवरसीज बैंक इन्होंने एक MOU साइन किया फॉर को-लैंडिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना बाय 2030। देन बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया BOB 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम विद हायर इंटरेस्ट रेट। DBS बैंक इंडिया इन्होंने कोलैबोरेट किया स्टार्टअप तमिलनाडु के साथ टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप इन तमिलनाडु। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन्होंने एक 11 मेंबर का पैनल फॉर्म किया टू एग्जामिन द डिमांड फॉर द इंक्लूजन ऑफ मोर कंपोनेंट्स इन ऑटो PLI। ये चेयर किया जाएगा हनीफ कुरैशी के द्वारा। देन वीरा राणा इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश एंड ये सेकंड वीमेन बनी है टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। बर्नार्डो इनको स्वॉन इन किया गया एज सीजर बर्नार्डो को एज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला। देन इसरो ने डेवलप किया सेकंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन। अजीत सिंह गिल ये सिंगापुर के फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं, ओलंपियन है, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। 19th नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे, 19वां नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे 19 जनवरी को एंड गोवा वो पहली स्टेट बन गई जिन्होंने रीजनरेटिव टूरिज्म को लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। अडानी ग्रीन इन्होंने 8.4 गीगावाट का मार्क क्रॉस किया एंड इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है। मुद्रा एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है, राइट। इट बिकेम द इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू हैंडल 16.1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो।
गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भारत आटा इनिशिएटिव फॉर अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर। 10th कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल हुआ कहाँ पर, भुवनेश्वर में। THDC इंडिया ने पैक्ट किया एक साइन टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन कर्नाटका। न्यू दिल्ली होस्ट करेगा 33rd कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड एनिमल हेल्थ। उत्तराखंड वो पहली स्टेट बन गई टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। अयोध्या सेट कर रहे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन्होंने सेट किया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग 22 लाख दिया। देन आयना डैशबोर्ड फॉर सिटीज, ये एक पोर्टल है जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मेघालय ने लॉन्च किया फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडिया ने रैंक किया सेकंड इन एम्प्लॉयज वेलबींग इंडेक्स, जहां पर टर्की की रैंक आई फर्स्ट, जापान लोएस्ट रैंक पे था। मीका ये वर्ल्ड का पहला रोबोट CEO बन गया है, मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। देन जापान को अभी एक नया आइलैंड मिला आफ्टर एन अंडरसी वॉल्केनो इरप्शन। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव किया 50% कोटा इंक्रीज। 6th मीटिंग ऑफ इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग हुई कहाँ पर, वियना में। 800 एक बायोपिक का नाम है जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की है। देन इंडिया की रैंक रही 117 अमंग 129 नेशंस इंक्लूसिव इंडेक्स बाय US वेरेसिटी न्यूजीलैंड में, राइट। और न्यूजीलैंड की फर्स्ट पोजीशन रही यहाँ पर। इंडिया की 117वीं रैंक इन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स बाय US वेरेसिटी एंड न्यूजीलैंड की यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन रही। देन न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया इंटरेक्टिव मैप फॉर बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन। नेक्स्ट आ जाता है, इसको इग्नोर करेंगे, शीतल महाजन, ये वो पहली वीमेन बन गई जिन्होंने स्काई डाइव किया फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। देन PM मोदी लॉन्च्ड PVTG डेवलपमेंट मिशन एंड विकसित भारत संकल्प यात्रा। इंडिया ने होस्ट किया सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया सिटीज 2.0 न्यू दिल्ली में। दिल्ली एयरपोर्ट ने सनफ्लावर इनिशिएटिव लॉन्च किया। इंडियन रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद IRCTC इन्होंने भारत गौरव टूरिस्ट लॉन्च किया। देन इंडिया एंड USA के बीच में एक डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक MOU साइन किया गया। कोची इन कॉननेस्ट लिस्ट, ये बेस्ट प्लेसेस टू विजिट आई इन 2024, कोची केरला में है। देन 42nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। देन WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साइन किया एक ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर 2 days ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, अहमदाबाद में। देन 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर, गोवा में। लद्दाख को 4th GI टैग मिला है सी बकथ्रोन के लिए। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया 37th PM श्री केंद्रीय विद्यालय, 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ओडिशा में। बिहार गवर्नर ने अप्रूव किया बिल रेजिंग रिजर्वेशन फ्रॉम 50% टू 65% फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। देन IFFI 2023 की बात करें तो राजकुमार हिरानी टू हेड द जूरी पैनल फॉर द बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें तो इन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को, और ये कहाँ पर हुआ, शिलोंग में हुआ। देन बेंगलोर ने टॉप किया वीमेन लेड स्टार्टअप्स को। कौन सी सिटी ने टॉप किया, बेंगलोर ने, इसको मार्क करके चलेंगे। देन 7th एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट अभी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ पर हो रहा है, नागालैंड में हुआ दिसंबर में। कहाँ का फेस्टिवल है, नागालैंड का। देन केरला के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ने मेड इट टू द UNWTO लिस्ट, बिल्कुल मार्क करेंगे इसको। देन मेघालय ने लॉन्च किया वाटर स्मार्ट किड कैंपेन टू फॉस्टर वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस अमंग यंग माइंड्स। सैफरन, इसको GI टैग मिला फ्रॉम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। देन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन्होंने डिक्लेयर किया 25 नवंबर को एज अ नो नॉन वेज डे, मार्क करेंगे ये भी। देन मध्य प्रदेश को भी इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व मिला इन दमोह, टू बी ऑपरेशनल इन 2 से 3 महीने में ही ऑपरेशनल हो जाएगा। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में। देन इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इन्होंने अभी एक रिपोर्ट निकाली, करेक्ट, नीड कंसर्न फॉर द वर्कर्स एंड लेबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, करेक्ट। देन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में भी एक MOU साइन हुआ इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। देन आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नेम्ड has been changed to Ayushman Arogya Mandir. Then Ministry of Mine is about to launch first ever tranche of strategic mineral auction. Then inauguration of Hemfest 2023 कहाँ पर हुआ, अहमदाबाद में। Department of Revenue under the Ministry of Finance is hosting the Asia Pacific Workshop for Money Laundering Cases. Then विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ पर हुई, महाराष्ट्र में हुई। काशी तमिल संगम is scheduled to be launched in December 2023. इंडिया का फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस is going to be set up कहाँ पर, in उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये हो गए हमारे वन लाइनर्स। अब आ जाते हैं MCQs पर, राइट। काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके MCQs, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इन विच स्टेट मेरा हाउ चोंगबा द एनुअल कल्चरल फेस्टिवल
ऑफ सॉलिडेरिटी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 28 अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर को मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया किस स्टेट के द्वारा? वो रहेगी मणिपुर, राइट, मार्क करके चलेंगे। और ये जो फेस्टिवल है ये मार्क करता है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन मणिपुर एंड बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, लव एंड यूनिटी। नेक्स्ट, अश्विनी वैष्णव, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया दैट इंडिया विल बी होस्टिंग वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTASA। किस साल में ये ऑर्गेनाइज करेगी इंडिया? तो 2024 में इंडिया ऑर्गेनाइज करेगी इस असेंबली को, मार्क करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, which state government recently approved an electrification scheme to provide electricity facilities to unelectrified rural hamlets and households? तो किस स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी? झारखंड, राइट। झारखंड वो स्टेट बनी जहां पर हम इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम प्रोवाइड करा रहे हैं बेसिकली कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सके जहां पर उन घरों में इलेक्ट्रिसिटी की अभी तक कनेक्शन नहीं पहुंचा है। ये एक स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के अंडर, राइट। एंड 1485.39 करोड़ रुपीस यहाँ पर अलोकेट किए गए फॉर दिस स्कीम। तो किस स्टेट ने या किस कंट्री ने यहाँ पे फंड किया 44.7 मिलियन डॉलर इंडिया के द हंगर प्रोजेक्ट के लिए? वो है नॉर्वे, राइट। और इनका एम रहेगा 2026 तक हम यहाँ पे फंड कर सकें 3 साल तक इस प्रोजेक्ट को, एंड यहाँ पे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बेसिकली बात की गई। Next, which company has recently collaborated with Ministry of Women, Child and Development to support the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ initiative? It is Colors, right? Colors आपके चैनल का नाम रहेगा, राइट। इन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के साथ ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा सके, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच स्टेट और यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया 250 मीटर लंबा नवदुर्गा पाथ, एक स्काई वॉक एंड रीमॉडल द पार्वती भवन। तो किसके द्वारा ये किया गया? कौन सी स्टेट के द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर में ने यहाँ पर 250 मीटर लंबा नवदुर्गा पाथ स्काई वॉक को लॉन्च किया, राइट। ये जो स्काई वॉक है ये एक पेडिस्टेरियन फ्लाईओवर है जो कि बिल्ट एन एलिवेशन ऑफ 20 फीट अबव द ग्राउंड, और इसको बनाने में 15.69 करोड़ रुपीस की लागत लगी। एंड ये जो पार्वती भवन है इट इज़ लिंक टू स्काई वॉक टू एंश्योर दैट जो पिलग्रिम्स हैं वो आना जाना कर सकें विद देयर डिपॉजिटिंग देयर लगेज। एंड ये जो पिलग्रिम है और ये जो आपका स्काई वॉक है यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली 10,000 से लेके 15,000 तक पिलग्रिम्स होते हैं वो डेली यहाँ पे विजिट करेंगे। नेक्स्ट, भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, इन्होंने अनवेल किया क्रेस्ट ऑफ द इंडियन नेवल शिप डैश जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ऑफ प्रोजेक्ट 15B। तो ये रहेगा INS सूरत, राइट। क्या है? INS सूरत, राइट। ये अभी INS सूरत है जो कि भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के द्वारा अनवेल किया गया जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B। नेक्स्ट, किस स्टेट ने या यूटी ने किस स्टेट की या यूटी की पुलिस ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया GPS बेस्ड ट्रैकल एंकलेट्स टू मॉनिटर द टेरर अक्यूज्ड पीपल आउट ऑन बेल। जो आपके लोग बेल पर हैं बाहर उन पे एक GPS ट्रैकर लगाया गया उनके एंकलेट पे, मतलब पैर पर। किस स्टेट के द्वारा या यूटी के द्वारा? तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। और याद रखेंगे ऐसा सिस्टम आपका हमें USA, UK, साउथ अफ्रीका, इनमें न्यूजीलैंड में ऑलरेडी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन नवंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन, इन्होंने लॉन्च किया फेज 4 ऑफ ऑपरेशन डैश जो कि बेसिकली इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर एंड रेड सैंडर्स को, यहाँ पे जो इलीगल ट्रेड होता है इसको रोकने के लिए इन मिडल ईस्ट ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेशन इनिशियली 2015 में लॉन्च किया गया था, इसीलिए हम देख रहे हैं इसका भी फेज 4 यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन का नाम क्या रहेगा? ऑपरेशन शीशा, राइट। टिम्बर एंड इंक्लूडिंग रेड सैंडर्स, इसके इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ये ऑपरेशन शीशा लॉन्च किया गया था, राइट। और इसका फेज 4 अभी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया कौन सा फाउंडेशन डे? तो इन्होंने इनॉग्रेट किया 71st फाउंडेशन डे ऑफ द EPFO ऑन 1 नवंबर 2023, राइट। और यहीं पर भविष्य निधि अवार्ड से भी प्रेजेंट किया गया 2023 के ड्यूरिंग द 71st एडिशन ऑफ EPFO फाउंडेशन डे। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली साइन किया एक MOU दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ टू प्रमोट वीमेन लेड एंटरप्राइजेस इन इंडिया?
तो कौन सी है वो रेगुलेटरी बॉडी? वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने रिसेंटली टाई अप किया डे एनआरएलएम के साथ, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ एक एमओयू साइन किया, ताकि वीमेन लेड एंटरप्राइजेस को, वीमेन लेड स्टार्टअप्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके इंडिया में। एंड ये जो एमओयू है 2 साल के लिए यहाँ पे ये साइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड महात्री वंदना योजना। दूसरा, व्हाट इज द कनत सिस्टम, जो कि अभी न्यूज में था। तीसरा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर फॉर फिशरमैन। चौथा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल एम्पायर बाय आईसीसी फॉर बायलेटरल सीरीज। और पांचवा, चेंगीज 6 मिशन, ये रिसेंटली न्यूज में था, ये एसोसिएटेड है किस कंट्री से। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.